یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، نہ ہم جانے کے قابل ہیں نہ وہاں پہنچنے کے قابل ہیں، کہاں میرے گندے قدم کہاں ان کا مقدس حرم، محض یہ ان کا فضل و کرم کہ ہم ان کے دربار تک پہنچ جایا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، عام نہیں بلکہ پوری دنیا ایک رات کے انتظار میں ہے، وہ رات جس کو کہا امام اہل سنت نے، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ 2-4 روز کے بعد وہ شب آنے والی ہے، اس میلاد کی شب کے لیے دنیا انتظار میں ہے۔ جس گلی سے جا رہا ہوں دیکھ رہا ہوں پرچم بک رہے ہیں، جھنڈے لہرا رہے ہیں، گھروں میں لائٹنگ ہو رہی ہے، قمقمے لگائے جا رہے ہیں، چھوٹے سے بچوں کے ہاتھوں میں ننھے سے جھنڈے ہیں، اور ہر جگہ چراغاں ہیں۔ گھروں میں جس کی جتنی استطاعت اور طاقت ہے وہ لائٹنگ سے اپنے گھر کو روشن کیا ہوا ہے۔ یہی تو سنیوں کا عقیدہ ہے کہ گھر دیکھ کر کے بھی نظر آتا ہے کہ کوئی اجالے والا آ رہا ہے۔ ہمارے محلے یہ بتاتے ہیں کہ کوئی نور والا آ رہا ہے، اور جن کے محلے اندھیرے ہوں شاید ان کے لیے نور والا آیا ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ قرآن نے ہمارے لیے کہا قد جاءکم من اللہ نور، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، نور جب آیا ہے تو وہ پوری دنیا کو جگمگایا ہے۔ ہم آج اس رات کے انتظار میں ہیں۔ عزیزوں، میں اگر انتظار کی ہی وہ گھڑیاں بتا دوں تو بہت لمبا وقت چلا جائے گا۔ وہ شب ولادت کا انتظار صرف ہمیں اور تمہیں نہیں، اس شب کا انتظار جبرائیل امین کو بھی تھا، برسوں سے تھا۔ جب وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارگاہ ایزدی میں رقص کناں تھا، تب بھی جبرائیل امین اس نور کو دیکھا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے پہلے پیدا کیا ہے۔ خود میرے آقا نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا۔ نہ آدم تھے، نہ حوا تھی، نہ کائنات کا کوئی ذرہ تھا، نہ ملائے اعلیٰ تھے، نہ عرش و کرسی، نہ لوح و قلم، سب سے پہلے ذات رسول ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں 12,000 سال تک، 1-2 سال نہیں، 12,000 سال تک یہ نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم وجد میں تھا۔ اور جب یہ نور رقص کنا ہوتا، میرے رب تبارک و تعالیٰ کے جلوے دیکھتا، تو اس نور سے بوندیں جھڑتی تھیں، یعنی ٹپکتی تھی بوندیں۔ فرمایا شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہ بارگاہ رب العزت میں جس وقت نور محمدی کو سامنے کیا جاتا تھا، یہ نور محمدی سے جتنے چھینٹے گرتے تھے، ہر چھینٹے سے مولا تعالیٰ کسی نبی کی روح کو بناتا تھا، کسی ولی کی روح کو بناتا ہے۔ اور جب کبھی رب ذوالجلال نے دوسرے عالم میں رقص یعنی وجد، عالم وجد میں اس نور محمدی کو طلب فرمایا، رقص کنا ہوا یہ نور، تو اس نور کے قطرے جو جھڑے، کسی قطرے سے جنت بنی، کسی قطرے سے عرش و کرسی بنے، کسی قطرے سے لوح و قلم بنے، کسی قطرے سے کائنات کے ذرے بنے، یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک میں تفصیل ہے، جو کچھ بھی دنیا میں بنا ہے وہ نور محمدی سے بنایا گیا ہے۔ آسمان کو الگ مولا نے بنایا ہے، زمین کو الگ بنایا ہے، اس کے 7 طبقے، اس کے 7 طبقے، یہ نور محمدی سے بنے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، پوری دنیا میں عالم نباتات ہو، عالم حیوانات ہوں، عالم جمادات ہوں، عالم جنات ہوں، عالم ملائکہ ہوں، ان تمام کو رب تعالیٰ نے نور محمدی کے چند قطروں سے بنایا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے انسانوں میں سے بھی اس نور کے حصے کو رکھا ہے، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کی مٹی کا پتلا جب بنا، اللہ رب العزت نے اس میں روح ڈالی۔ روح ایک نور ہے، روح باہر نکل آئی، کہا مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے، اندھیرا ہے جسم کے اندر، آدم کے جسم کے اندر اندھیرا ہے، مٹی کا بنا ہے، روح بار بار باہر آتی تھی، تو رب تعالیٰ نے نور محمدی کو آدم کی پیشانی میں رکھا،
आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में रखा, फिर रूह को डाला। हदीस पाक में मिलता है कि रूह को करार आ गया, यानी रूह सबसे पहले इंसान में आई भी है तो नूरे मोहम्मदी की बरकत से आई है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की और जान है तो जहान है, और जान है तो जहान है। मेरे अजीजों, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इस आमद का इंतजार जिब्राइल को भी है, मीकाइल को भी है, इजराइल को भी है, इसराफील को भी है अलैहिमुस्सलातु तस्लीम, बल्कि तमाम मलाइका को है, क्योंकि इन तमाम फरिश्तों ने भी मेरे रब के नाम के साथ अगर कोई दूसरा नाम देखा है तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। तमाम फरिश्तों में ये बातें चलती रहती थी, आखिर वो है कौन जिसका नाम अल्लाह ने साक़े अर्श पर लिखा है, जन्नत के दरवाजों पर अपने नाम के साथ लिखा है। हत्ता कि आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में जब तशरीफ लाए 350 साल के बाद आपकी तौबा कबूल हुई। रब ताला ने खुद इल्का फरमाया था कलमात आपको, फिर भी मौला ने पूछा, ए आदम तूने एक जुमला कहा है दुआ में, 300 साल से दुआ कर रहे थे, 350 साल के करीब यूं अर्ज किया, ए रब्बे जुल जलाल तूने अपने नाम के साथ जिसको सबसे ज्यादा मोहब्बत में नाम के साथ शामिल रखा है, उस मोहम्मद के वास्ते से तू मेरी तौबा कबूल फरमा। रब ताला ने फौरन तौबा कबूल फरमाई। पूछा, आदम तुझे ये कहां से खबर हुई? आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, मौला जिस वक्त तूने रूह डाला था मेरी पहली नजर तो इसी कलमे पे पड़ी थी, मैंने जहां नजर उठाई तूने अपने नाम के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तहरीर फरमाया है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वजूद नूर तो बरसहा बरस पहले से है, तो फिर उन लोगों को इंतजार कैसे ना होगा? यकीनन वो मलाइका के दरमियान ये बातें थी, आखिर वो नबी कब आएगा, वो नूर वाला कब आएगा, वो कितने साल इंतजार किए होंगे। तुम तो यहां पहली रबीउल अव्वल से इंतजार करते हो, 12वीं के बाद फिर सो जाते हो। मेरे अजीज, एक दुनिया इंतजार में रही है, पूरे पूरे अंबिया इंतजार में रहे हैं। हत्ता कि आदम अलैहिस्सलाम की जब तौबा कबूल हुई तो क्या उन्हें इंतजार नहीं रहा होगा? मेरी औलाद में से वो नबी पैदा होने वाला है, तो मैं उस नबी को देख कैसे ना लूं? मैं क्या उस वक्त तक रह पाऊंगा कि नहीं रह पाऊंगा? फिर भी आपने वजद में आकर के कहा, ए रब्बे जुल जलाल तेरा वो इतना महबूब है, क्या खबर कि मेरी औलाद में वो पैदा हो, उस वक्त मैं बाकी रहूं कि ना रहूं, मैं उसे देख सकूं कि ना देख सकूं। ए रब्बे जुल जलाल क्या तू उसके एक जलवे को मुझे न दिखा दे? क्या तू उसके एक जलवे को मुझे दिखा देगा? रब ताला ने फरमाया, ए आदम अपने दोनों अंगूठों को करीब करो, अपने नाखूनों में देखो। अल्लाह अल्लाह, मेरे रब्बे जुल जलाल ने नूरे मोहम्मदी को आदम अलैहिस्सलाम के अंगूठों में डाला और इन दोनों नाखूनों में मेरे आका का जलवा उन्हें नजर आया। बेसाख्ता उन्होंने लबों से लगाया, चूम करके अपने आंखों से मल लिया। इसीलिए तो आज भी आशिकाने मुस्तफा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जब भी हम कहते हैं वही हम क्या करते हैं, लबों से चूम कर आंखों से लगाते हैं। मेरे अजीजों, ये हमारे बाप की सुन्नत है, ये हमारे बाप का तरीका है, और जिसको इस तरीके से नफरत हो उसको फिर अपने बाप के तरीके से बिगड़े हुए होने का अंदेशा है। अजीजा ने गिरामी, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद का इंतजार आदम अलैहिस्सलाम ने भी किया, 1000 साल तक किया। फिर नूह अलैहिस्सलाम, उनकी कश्ती हिचकोले खाने लगी, दुआ मांगी रब्बे जुल जलाल से, ए मौला तू नजात दे दे इस अजाब से, उस मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके जो आखिर जमाने में तेरा महबूब बनकर जलवागर होने वाला है। मौला ने कश्ती को पार लगाया। नूह अलैहिस्सलाम 950 साल इंतजार करते रहे, शायद वो नबी मेरे जमाने में आ जाए, मैं अपना सब छोड़ करके उस नबी की पैरवी में लग जाऊं और उस नबी की शरीयत को मान लो। उनका जमाना गुजर गया। इदरीस अलैहिस्सलाम आए, कई 100 साल तक दर्स देते रहे, हर दर्स में लोगों को समझाते थे हम असल नहीं हैं, एक नूर वाला हमारे बाद आने वाला है, हम तो उसके इंतजार में हैं, वो कब आएगा। उनकी जिंदगी तमाम हुई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिस्र से पैदल चलते हुए हरम मक्का में आए, हुक्म खुदा के मुताबिक काबा अपने हाथों से बनाया। सब तामीर होने के बाद बेटा तो उनके भी नहीं था, 90
90 साल की उम्र में बेटा हुआ, वो भी कुर्बान करने का हुक्म हुआ। फिर उसके बाद इन्हीं बेटों को देख करके इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये बेटे तो वो नहीं हैं जिसके इंतजार में हम बैठे हुए हैं। दिया तो है रब ताला ने 90 साल के बाद, लेकिन ये वो नहीं है जिसके इंतजार में अंबिया आ रहे हैं, जिसके कसीदे सुनाए जा रहे हैं। जब इस्माइल भी पैदा हुए, इसहाक भी पैदा हुए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 2 बेटे हुए, उसके बावजूद एक पत्थर है मकाम इब्राहिम, उसकी तारीख भी याद कर लो। मकाम इब्राहिम के पास अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया 2 रकात नमाज पढ़ना है। हाजी को भी, उम्रा करने वाले को भी तवाफ करने के बाद उस पत्थर के पास 2 रकात नमाज पढ़ना वाजिब है। लोग तो कहते हैं उस पत्थर पर खड़े होकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा बनाया, इसलिए वो पत्थर मुकद्दस है, वहां पर 2 रकात पढ़नी चाहिए ना। काबा बनाया इसलिए नहीं, बल्कि तारीख में यह है उस पत्थर पर खड़े होकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिक, ऐ मौला मेरी औलाद में से वो रसूल पैदा कर दे जो तेरी आयतें तिलावत करे, लोगों के दिलों को धोए और तेरी आयतों की तिलावत करके उन्हें इल्म और हिकमत दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ किए, अपनी पूरी जिंदगी इंतजार किए। इस्माइल अलैहिस्सलाम मक्का ही में रहे उस नबी की आमद के इंतजार में, वो नबी नहीं आए। जमाना बीतता गया, कितने साल गुजर गए, फिर दाऊद अलैहिस्सलाम का जमाना आया। आपकी शहंशाहियत थी, आपकी बादशाहत थी, लेकिन बादशाहत के साथ साथ आप ये कहते थे जिस दिन वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जलवागर होंगे मैं तख्त से नीचे आ जाऊंगा। हत्ता कि उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त नशीन हुए। अब वो तख्त जो लेकर के उड़ते थे आसमानों पर, 500 अंबिया उनके दाएं जानिब बैठते थे, 500 औलिया उनके बाएं जानिब बैठते थे, और उस तख्त को वो कहते तो हवाओं में उड़ा ले जाता था। वो ताकत थी सुलेमान अलैहिस्सलाम की, लेकिन बावजूद उसके एक शख्सियत का इंतजार था, उसी नूरे मोहम्मदी का इंतजार था। एक बार उड़ते उड़ते अचानक तख्त को कहा नीचे हो जा, तख्त नीचे आया, सबको चलने का हुक्म दिया, कहा सब चल के चलो, उड़ के नहीं, सवार होकर के नहीं। बहुत दूर चलने के बाद फिर तख्त मंगवाया, फिर बैठे और फिर उड़ान भरी। लोगों ने पूछा इतना हिस्सा पैदल क्यों चला? सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं ये जो हिस्सा हमने पैदल चला है ये आखिरी नबी की आरामगाह बनेगी, आखिरी नबी के आने की ये जगह है, वो मदीना तैयबा ताबा है, जिसकी वजह से यहां पर सुलेमान अलैहिस्सलाम तक उड़ना गवारा नहीं किए। सुलेमान अलैहिस्सलाम को इंतजार है। मूसा अलैहिस्सलाम बेपनाह लोगों की आपके पास एक बड़ी फौज थी ईमान वालों की, लेकिन सारे ईमान वालों को एक चोटी पर ले जाते हैं और जमा करते हैं और कहते हैं अनकरीब वो नूर तुलू होगा फारान की चोटियों से। तो मेरी तालीम सुनते हो, मेरी हिकमत सुनते हो, इंतजार करो, मेरे बाद एक नबी आएगा और उसके हाथों में अल्लाह ने मसीहाई दी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद उस नबी के कसीदे पढ़े। फिर उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना आया। अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम ने जो कहा है वो कुरान में भी है, वो मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ऐ लोगों तुम मुझे देखकर ताज्जुब कर रहे हो, मैं बगैर बाप के पैदा हुआ हूं, मैं अगर मुर्दों पर हाथ रखता हूं तो वो जिंदा होते हैं, मिट्टी के परिंदों को फूंक मारता हूं तो वो उड़ जाते हैं। ये ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात थे। बावजूद उसके ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं असल नहीं हूं, एक नबी आएगा जिसकी बड़ी बड़ी आंखें होंगी, जिसके लबहाए मुकद्दसा गुलाब की पंखड़ियों से ज्यादा हसीन होंगे, जिसके खिराम नाज, जिसके चलने के अंदाज, जिसके जिस्म की सफेदी, मोहर नबूवत के निशान, सब कुछ ईसा अलैहिस्सलाम ने बयान किया। मेरे अजीजों दुनिया को कब से इंतजार है इस घड़ी का? अगर हम थोड़ी देर इंतजार करते हैं तो कौन सी बुरी बात है। आदम अलैहिस्सलाम से नहीं, उनसे पहले से भी दुनिया को इंतजार है। हत्ता कि हुराने जन्नत भी बार बार दुनिया में ये नजारा करना चाहती हैं। जन्नत से वो झांक करके कायनात में देखा करती हैं कि कहीं वो नूर जलवागर तो नहीं हो गया, वो आमिना का लाल फिर आया इस जमाने में। 550 साल बीत गए ईसा अलैहिस्सलाम के बाद भी लोग इंतजार में थे। मदीना आबाद हुआ है हुजूर के इंतजार में। 1000 साल पहले से लोग वहां घर बनाकर बैठे हैं कि वो अब आएगा कि तब आएगा। फिर वो आने के आसार आ ही गए। कायनात में एक हलचल सी मची थी। एक जमाना ऐसा आया कि
अरब क्या पूरी दुनिया में अजीब व गरीब निशानियां होने लगी। एक भेड़िया जानवर जंगल में खड़ा होकर के अरबी जुबान में बात करने लगा और लोगों को सबने देखा कि जानवर बात कर रहा है। सारे अरब के लोग उसके करीब करीब जमा होने लगे। वो पहाड़ पर चढ़ गया और फसी अरबी में कहने लगा, ऐ लोगों, ये जो मैं बोल रहा हूं तुम मेरी तरफ मुतवज्जे हुए हो। अनकरीब एक नबी आने वाला है जिसका इंतजार बरसहा बरस से किया जा रहा है। मुबारक हो, वो तुम्हारे शहर में आने वाला है। भेड़िया इतना कहा और चल दिया। फिर पूरे जमाने में एक हलचल कैसी मची थी। 1000 साल से जलाई हुई आग फारस में अचानक बुझ गई थी। किसरा का महल जिसके बारे में उन्हें यकीन था 1 लाख की फौज उसके महल की हिफाजत के लिए खड़ी रहती थी, अचानक उस किले में दीवार में दरार पड़ गई। इतनी दरार कि आज तक वो दीवार वैसी मौजूद है। आज तक पूरी शक हो गई दीवार, उसके कंगोरे गिर गए। किसरा का आतिश कदा बुझ गया। बुहैरा, एक जगह समंदर, एक पानी अचानक सूख गया। ये तमाम निशानियां काहिनों के पास लेकर के लोग आए, कहने लगे कि क्या हो रहा है दुनिया में। कभी भेड़िया बात कर रहा है, कभी जलजले आ रहे हैं, और कभी दीवार फट रही है जो कभी नहीं फट सकती, और कभी आग जो 1000 साल से बुझी नहीं थी अचानक बुझ गई। और किसरा ईरान में जाकर के लोगों ने देखा उनके सारे बुत औंधे पड़े हुए हैं। रात भर जिनकी इबादत करते थे सुबह वो मुंह के बल गिरे हुए हैं। काहिनों को बुलाया गया, पूछा गया ये दुनिया में हलचल क्या है। सबों ने वही कहा होगा जो हमारे इमाम ने कहा है, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा। आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा। आलम में रंग बदला सुबह शबे विलादत। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस माह मुबारक को जरूर हमें मुबारकबादी देना चाहिए। प्यारे रबीउल अव्वल तेरी झलक के सदके चमका दिया नसीबा सुबह शबे विलादत। ताअर्श उड़ा फरेरा सुबह शबे विलादत। मेरे अजीजों, ये मीलाद का वो महीना आया होगा 570 साल ईस्वी चल रही थी ईसा अलैहिस्सलाम की वफात के, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के उठाए जाने के 570 साल के बाद अरब में एक और अचंभे की बात। मक्का वालों ने देखा हर जगह खुशहाली है, जो बरसों से जमीन सब्जे नहीं उगाती थी, मक्का में जगह जगह हरियाली हरियाली है, बारिश भी खूब हो रही है, जमीन नरम हो गई है। वो पथरेली चट्टानों की जमीन अचानक नरम हो गई, सब्जे उग रहे हैं। और ऊंटों को देखा फरबा हैं, बकरियों को देखा हर बकरी दूध दे रही है, जानवरों को देखा सब के सब फरमाबरदारी में लगे हुए हैं। मक्का वालों ने फिर सोचा अचानक जानवरों में तब्दीली कैसे, कि जो बूढ़ी बकरियां हैं उनके थन दूध से भरे हुए हैं। अच्छा, जो बांझ औरतें हैं वो भी बशारत दे रही हैं कि हमें हमल हो चुका है। बांझ औरतें कह रही हैं कि हमें हमल के आसार नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं मेरे अजीजों, ये 570 ईस्वी का साल ऐसा था पूरे मक्का में जितनी औरतें हामिला हुई किसी भी हमल से बेटी नहीं, हर एक को बेटा ही पैदा हुआ। हर एक को बेटा पैदा हुआ। यह भी एक अचंभे की बात थी। यह अजीब व गरीब तब्दीली नहीं है, जमीन में अलग अलग निशानियां जो नजर आ रही हैं। फिर मेरे अजीजों, वो महीना रमजानुल मुबारक के बाद से लेकर के हम चलते हैं बीबी आमना के घर। अल्लाह अल्लाह, जिसको अल्लाह ने कायनात का इतना बड़ा नसीबा दिया है, जिसके एक मुंह मुबारक को चूमने के लिए पूरी दुनिया बेताब रहती है। मेरे आका के सरापे को मौला ने उस आमना की गोद में डाल दिया। वो कायनात की सबसे हसीन तरीन माँ है, और बल्कि सबसे अफजल तरीन माँ है, जिसके पेट में 9 माह मेरे आका ने क़याम फरमाया। आओ बीबी आमिना के घर चलते हैं, पूछते हैं और भी औरतें हमल से होती हैं, तुम्हारा हमल कैसा था। अल्लाह अकबर। उनकी रिवायतें वो कहती हैं, जब से ये मेरा बच्चा हमल में आया न मुझे दर्द था, न कोई गम था, न भारीपन होता था। औरतें जो हमल में होती हैं पैर भारी होते हैं, सर चकराने लगता है, उल्टियां आती हैं। बीबी आमिना कहती नहीं, जब से ये हमल आया मुझे हर चीज अच्छी अच्छी लगने लगती थी, न भारीपन था न दर्द था। होगा भी तो दर्द कैसे, तुमने पेट में उसको रखा है जो सारे दर्दों से आजाद करने वाला है।
दर्दों से आजाद करने वाला जो तेरे शिकमे पाक में है। बीबी आमना कहती है, ए लोगो, इतना ही नहीं, मेरा ये हसीन मौलूद जो आने वाला है, मैंने हर एक रात इसके अलग अलग नजारे देखे हैं। ये माह मुबारक हम मौलूद में पढ़ते हैं, मनकुस मौलूद में, बुश्शिरत फी शाबान बिनैलिल मुना वकील लहा फी रमदान लक़द हमलती बिल मुतहरी मिन अद-दनस वल खना व समिअतिल मलाइकत फी शव्वालिन युबश्शिरूनहा बिज़फ़र बिगायतिल मुना व रअतिल खलील सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम बिज़फ़र बिगायतिल मुना। ये तमाम हज़रत बीबी आमिना की रिवायतें हैं जो हम पढ़ रहे हैं। वो कहती हैं, मेरा हमल तो ठहरा था रजब के महीने में, और वह जुमा की रात थी। रजब के महीने में ये हमल करार पाई, लेकिन एक महीना नहीं गुजरा था कि अचानक मैं रात में सोती तो गैब से मुझे आवाजें आती थी, मुबारक हो आमिना, मुबारक हो आमिना, तेरी गोद में हसीन तरीन मौलूद आया है, रब ताला ने तेरा इंतखाब किया है। मैं ये हर रात सुनती थी। जब शाबान का महीना आया उसके बाद मैंने देखा, रमजान में मुझे कहा गया, ऐ आमिना, तुझे हर तरह की नापाकी से पाक कर दिया गया है। हर तरह के दनस कहते हैं हल्की सी भी खता को, इन तमाम चीजों से तुझे पाक कर दिया गया है। कहती है, शव्वाल का महीना आया, मैंने तो मलाइका की बातें भी सुनना शुरू कर दिया। वो अर्श पर मौजूद मलाइका जो गुफ्तगू करते थे, बीबी आमना कहती है, मैं वो सुनने लग गई थी। समिअतिल मलाइकत फी शव्वालिन युबश्शिरूनहा बिज़फ़र बिगायतिल मुना। बीबी आमना कहती है, शव्वाल के महीने में मैं सुनती थी पहले आसमान के फरिश्तों की बातें, दूसरे आसमान के फरिश्तों की बातें, हत्ता कि सिदरतुल मुंतहा तक के फरिश्तों की बातें। वो आपस में एक दूसरे को मुबारकबादी दे रहे थे। ऐ मलाइका, हजारों साल से जिसका इंतजार कर रहे हैं, सुना है कि वो अब एक माँ की पेट में आ चुका है, अनकरीब वो जलवागर होने वाला है, अनकरीब वो दुनिया में आने वाला है। मलाइका की बातें सुनती थी बीबी आमिना। अल्लाह अकबर। लोग ये कहते हैं, नबी कैसे नहीं सुन सकते थे? उनकी मां फरिश्तों की बातें सुन सकती है, तो वो लाल पूरी कायनात की क्यों नहीं सुन सकता? मेरे अजीजों, फरिश्तों की बातें सुनती रही। जिलकादा का महीना आया, कहती हैं, मैंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा, मेरे घर तशरीफ लाए, कहा, आमिना तुझे मुबारक हो, हमने जिसको पत्थर पर खड़े होकर मांगा था वो अल्लाह ने तेरी गोद में दे दिया है, अल्लाह ने तुझे बड़े मकामात दिए हैं। हजरत बीबी आमिना कहती, फिर जब जिलहिज्जा का महीना आया, मैंने देखा मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और कहा, एक झंडा उठा करके कहा, बीबी आमिना तुझे मुबारक हो तेरा मौलूद मसूद, कि वो अब ऐसा परचम बुलंद करेगा कि उसके परचम को सुबह क़यामत तक कोई नीचा नहीं कर सकेगा। अल्लाह अल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम ने जो बशारत दी थी वो हक बशारत है। आज भी मेरे मुस्तफा का झंडा हर जगह लहरा रहा है, कोई उस झंडे को नीचा करने वाला आया नहीं। जिसने नीचा करने की कोशिश की वो खुद नीचे हो गया, रजील हो गया, जलील हो गया, मगर ये झंडा फिर भी लहरा रहा है। अजीजान गिरामी, फिर जिलहिज्जा का महीना खत्म हुआ, मुहर्रम के महीने में बीबी आमिना कहती है, अब तो मैं अंबिया की बातें सुनती थी, अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की बातें, अब मैंने मुहर्रम के महीने में सुना, वनादा हाफी मुहर्रमिन सैयदुना जिब्रील अलैहिस्सलाम, जिब्रील अलैहिस्सलाम की आवाज मैंने सुनी। कब? मुहर्रम की इस महीने में। रोजाना वो फरिश्तों को कहते, सफे लगाओ, नूर वाला आने वाला है, सब बस्ता खड़े हो जाओ, वो कायनात का हसीन आका आने वाला है। मुहर्रम में वो खड़ा कर रहे हैं, हत्ता कि सफर का महीना आया। अल्लाह अकबर। अब कहती हैं बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आवाजें आने लगी, कायनात को सजा दिया जाए, हर चीज में रोशनी कर दी जाए, पूरी कायनात को ये बशारतें दी जा रही हैं। यकीनन तमाम अंबिया जो जा चुके थे वो अपनी कब्रों से भी उस नूर वाले नबी के इंतजार में हैं, हर कोई इंतजार कर रहा है। सफर का महीना कट गया, फिर रबीउल अव्वल का पहला दिन था। बीबी आमिना कहती है, अचानक मेरे घर से, मेरी पेशानी से एक नूर निकला, मेरे घर की दीवारों को फाड़ता हुआ गया, यहां तक कि मैं मक्का में बैठ करके इराक के बसरा के महल्लात को देखने लग गई, मुल्के शाम के महल्लात को मैं देखने लगी। मुल्के शाम पड़ोस में नहीं है, 1000 किलोमीटर से दूर है, मक्का से 1000 किलोमीटर से ज्यादा लंबा सफर बीबी आमिना एक जगह बैठ करके देख रही हैं। किसकी बरकत है लोगों? ये उस मुस्तफा करीम की बरकत है। उनके पेट में
وہ رسول پاک ہیں جس کی وجہ سے آمنہ وہاں تک دیکھتی ہیں. اسی لیے تو ہمارے امام نے کہا ہے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. کس نے دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا کی نظروں کی بات کرتے ہو, اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. ربیع الاول شریف کا مہینہ شروع ہے, یہی وہ مبارک مہینہ ہوا ہوگا آج سے تقریباً 14 صدیاں پہلے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا وہ سما کیسا ہوگا. مکہ میں جتنے راہب تھے, جتنے عیسائی پادری تھے, انہوں نے بھی محسوس کر لیا تھا, جو یہودی تھے وہ بھی محسوس کر لیے تھے کہ ہم نے جو کتابوں میں پڑھا ہے وہ ان قریب آنے والا ہے, کیونکہ آسمان الگ خبریں دے رہا ہے, زمین الگ سے نرم ہو چکی ہے. حتیٰ کہ کہا گیا جو درخت 50 سال سے پھل نہیں دیا تھا, اس سال وہ پھلدار ہو چکا تھا, پھل دینے لگ گیا تھا. جو بوڑھی بکریاں دودھ نہیں دیتی تھی, دودھ سے تھن بھر گئے ہیں. یہ حیرت انگیز تبدیلیاں. اللہ اکبر. بی بی آمنہ فرماتی ہیں پہلے ربیع الاول سے اب جو 10 ربیع الاول تک روزانہ رات کو میں سنتی تھی, جنت کی حوریں آتی رات بھر ترانے سناتی تھی, حوریں گاتی تھی ترانہ. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے سے قبل مجھے کبھی کبھار یہ بات یاد آتی ہے, ہمارے علاقے میں عورتیں مجالس میلاد پڑھا کرتی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ کون سی روایتیں پڑھتی ہیں, لیکن اگر صحیح روایات پڑھتی ہیں تو مجھے وہ یاد تازہ ہونے لگتی ہے کہ بی بی آمنہ کو حوران جنت سنایا کرتی تھی کہ اے آمنہ تجھے مبارک ہو, تیری گود کو مبارک ہو, تیرے شکم کو مبارک ہو, تو نے کائنات کے حسین ترین دولہا کو اپنی گود میں جگہ دیا ہے. یہاں تک کہ یہ 12 ربیع الاول شریف کا دن جو صبح آنے والی ہے, جس کو ہم کہہ رہے ہیں صبح شب ولادت, میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی صبح جو آنے والی تھی, میں آج اسی لیے برکت کے لیے کہہ رہا ہوں, پتہ نہیں کل میں رہوں نہ رہوں, واپس میرا آنا ہو یا نہ ہو, میں میرے مصطفیٰ کے قدموں میں جانے سے پہلے اس شب کو یہیں سے ملحوظ ملاحظہ کرنا چاہتا ہوں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آمد سے پہلے کی رات بی بی آمنہ فرماتی ہیں وہ درد نہیں تھے جو درد زہ ہوتے ہیں, جو ڈیلیوری کے وقت ایک خاتون کو درد ہوتے ہیں, وہ کوئی درد نہیں, بلکہ رات بھر حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں سکون کے ساتھ میں ٹہلتی رہی. آسمان خوب روشن تھا, اس دن آسمان خوب روشن تھا, چاند اپنے شباب پر تھا, تارے خوب جھلملا رہے تھے. ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بھی کسی کے انتظار میں ہیں, کیوں نہ انتظار میں ہوں گے. بی بی آمنہ کبھی گھر کے باہر آتی تھی, یہ حسین منظر دیکھتی تھی اور اپنے گھر میں چلی جاتی تھی. کہتی ہیں صبح کا وقت ہونے والا تھا, صبح صادق کے وقت اچانک میرے دروازے سے کچھ لوگوں کے اندر آنے کی مجھے آہٹ محسوس ہوئی. میں نے دیکھا کچھ برقع پوش خواتین آئی ہیں. اچانک یہ صبح کے وقت کہاں سے میرے گھر آئی؟ بی بی آمنہ کہتی ہیں میں سو گئی, ان خواتین سے پوچھا تم کیسے آئی ہو, کون ہو؟ اس میں سے ایک خاتون نے کہا میں بی بی حوا ہوں, دوسری نے کہا میں بی بی مریم ہوں, تیسری نے کہا میں بی بی آسیہ ہوں. یہ دنیا کی سب سے پاکیزہ خواتین. کہا کیوں آئی ہیں؟ کہا آمنہ تیرے آنے والے کی دایا بن کر کے آئی ہیں, تیرے آنے والے اس نو مولود کی دایا بن کر کے آئی ہیں. اللہ اکبر. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بھی اس شان سے ہوئی ہے میرے عزیزو, اس شان سے کہ ویسی ولادت پوری کائنات میں کسی کی نہیں ہوئی. اسی لیے تو حسان بن ثابت نے کہا تھا خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. اے محبوب آپ تو ویسے پیدا کیے گئے ہیں جیسے لگتا ہے آپ نے اپنی چاہت سے مولا سے لکھوا کر کے لایا تھا, کہ اس شان سے پیدا ہونا ہے. اجمل منک لم تلد النساء واحسن منک لم تر قط عینی. یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے دایائیں گھر میں آئی ہیں. حضرت بی بی آمنہ کہتی اچانک ایک نور کی شعاع نکلی, میری آنکھیں بند ہوئی, مجھے عجیب سا ایک فرحت سا احساس ہوا, خوشیوں کا احساس ہوا. تھوڑی ہی دیر کے بعد میں نے دیکھا فجعلت انظر الیہ واذا منادی ینادی اخفوه عن اعین الناس. اچانک ایک چھوٹا سا چمکدار گلاب سے زیادہ خوشبو والا اور ستھرے کپڑے میں ملبوس میرا بچہ دنیا میں تشریف لایا ہے. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. آئی نئی حکومت
सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला सुबह शबे विलादत। प्यारे रबीउल अव्वल तेरी झलक के सदके चमका दिया नसीबा सुबह शबे विलादत। बीबी आमिना फरमाती हैं, मैं देखना चाह रही थी मेरे बच्चे को, अचानक आवाज आई, अख्फूहु अन आयुनिन नास, छुपा दो उस महबूब को लोगों की नजरों से। 3 लोग और अंदर दाखिल आ गए, ये 3 दाएं हट गई, 3 और आ गए। मैंने देखा ये हसीन चेहरे वाले आए हुए हैं, एक के हाथ में तश्त है, एक के हाथ में जग है पानी का, एक के हाथ में रेशम का लिबास है। इन तीनों ने मेरे बच्चे को उठा लिया, एक ने वो तश्त पर रखा, दूसरे ने वो जग का पानी डाला। मैं पूछती रही ये क्या है? एक फरिश्ते ने कहा ये जन्नती तश्तरी है, एक ने कहा ये माए सलसबील है, और तीसरे ने कहा ये हसीन तो तरीन दुनिया में नहीं बल्कि जन्नत का सबसे पहला लिबास है जो अल्लाह ने अपने महबूब के लिए भेजा है। हम तो बाजार से खरीद करके लाते हैं, हम बाजार से पैदा होने वाले के लिए खरीद के लाते हैं। मेरा मुस्तफा दुनिया में आया है, कपड़े मौला ने भेजे हैं, कपड़े मौला ने भेजे हैं। अरे दाया बनकर कोई पाक खातून आ रही है, उठाने और नहलाने के लिए जन्नती फरिश्ते आ रहे हो, लिबास मेरे मौला की तरफ से हदिया आ रहा हो। फिर बीबी आमिना कहती हैं, मैं खुश थी, मेरा सारा काम तो ये कर ही रहे हैं, मेरे मौलूद को उठाया है, धोया है, कपड़े में मलबूस किया। हजरत बीबी आमिना कहती हैं, पूरे घर में इतनी तेज खुशबू हो गई कि मैं अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक देखा न मेरा बच्चा है न वो फरिश्ते हैं, पूरे कमरे में सन्नाटा है, कोई नहीं। मैंने सोचा मेरा बच्चा कोई चुरा तो नहीं लिया, ये हसीन और जमील मेरा महबूब कोई उठा तो नहीं लिया। मैं गम के मारे थोड़ी देर तक बिस्तर पर लेटी रही कि कहां चला गया, मुझे अजीब और गरीब चीजें थी। फिर अचानक मुझे आवाज आई, आमिना अब तक तो मौला ने तेरे साथ अच्छा ही किया है ना, अच्छा ही किया है ना, सबसे हसीन और जमील को तेरी गोद में दिया है, इसके बाद भी इंतजार कर और अच्छा ही करेगा, अच्छा ही होगा। हजरत बीबी आमिना कहती है, सब्र हुआ। थोड़ी देर के बाद मेरे बच्चे को लाया गया, पूछा ये कहां थे, कहां लेके गए थे? ओ मलए आला ने कहा, ऐ आमिना क्या तू समझती है कि तू सिर्फ एक ही मां है इसकी जो देखना चाहती है? अल्लाह का हुक्म था इस नए मौलूद मुस्तफा को, इस महबूब रब्बुल आलमीन को उठाओ, जो सदियों से इंतजार में मलाइका हैं, ले जाओ उनके पास जियारत करवाओ। हमने मलए आला में आलम मलाइका ने उन्हें दिखाया, सारे फरिश्ते तो, ऐ आमिना तू तो सुन रही थी, सफर के महीने से जो अपने हाथ बांध कर खड़े हैं इंतजार महबूब में, क्या हम उन्हें दीदार न कराएं? वो मलाए आला में ले गए और सारे फरिश्तों को ऐलान किया, कहा बरसा बरस से जिस नूर की आमद के तुम इंतजार में थे, लो वो आया हमारा आका, लो आया हमारा महबूब। मलाए आला में जियारत करवाया, उसके बाद आलम जिन्नात की इन्हें जियारत करवाई, आलम नबातात में ले जाया गया, आलम हैवानात में ले जाया गया। जितने रब्बे जुल जलाल के 18,000 आलम थे, हर आलम में हम मेरे आका को घुमा करके ले आए हैं। पूछा क्यों? कहा इसलिए कि रहमतुल लिल आलमीन है, ये रहमतुल लिल आलमीन है। अल्लाह अल्लाह, ये कितने आलमों की रहमत बनकर के आए थे। फरिश्तों की रहमत भी है, जमादात की रहमत भी है, जिन्नात की रहमत भी है, हैवानात की रहमत भी है, तमाम नबातात की रहमत है, वो अंबिया की भी रहमत है और औलिया की भी रहमत है, सब की रहमत है। अल्लाह के 18,000 आलम, उन सब आलमों की एक ही तन्हा महबूब को रहमत बनाया गया। इसीलिए जाहिर सी बात है, जलवागरी होने के बाद दिखाया तो जाएगा। जब कोई नया ओहदा लेता है तो उसे सबके सामने दीदार कराया जाता है। लेकिन मेरे आका नया ओहदा तो नहीं लिए थे, लेकिन बरसों से उनकी एक झलक देखने के लिए लोग इंतजार में थे। वो इंतजार की घड़ी को खत्म करने के लिए ये 3 फरिश्तों ने मेरे आका को सब जगह दिखाया। और उसके बाद ये देखें हमारी किस्मत, अल्लाह अकबर, हमारी किस्मत। उस नबी को पूछा गया, उस रसूल को पूछा गया, ये आलम मलाइका है, ये आलम जिन्नात है, ये आलम उलूहियत है, ये आलम सफली है, ये आलम सुरैया है, ये आलम सरा है, अलग अलग आलम है। ए महबूब
आप कौन से आलम में रहना चाहते हो? आप कौन से आलम में रहना चाहते हो? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पसंद पूछी गई, वो अपनी जुबान फैज तर्जुमान से फरमाते हैं, जिसको शायर ने कहा वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। मेरे आका तुम पे सदके जाओ, मेरे आका तुम पर निसार जाओ, हम ऐसे नहीं थे मगर आपने हम सब की दुनिया को पसंद किया, हमारी इस कायनात को आपने पसंद किया। कसम रब्बे जुल जलाल की, अगर मेरे रसूल चाहते तो वो जिब्राइल से भी आला मकाम पर होते, सिदरतुल मुंतहा पर होते। अगर मेरे आका चाहते जन्नत की नेमतों में ऐश से जिंदगी गुजारते, रब ताला के हुजूर में रहते। अगर मेरे आका चाहते आलम जिन्नात में रहते, आलम आला में रहते, इल्लीयीन में रहते, मगर हम गरीबों के साथ वो रहना पसंद करते हैं। हमारे इमाम ने इसीलिए कहा, जो न भूला हम गरीबों को रजा, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम। बीबी आमिना रब्बा तआला अन्हा की गोद में मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, वो मंजर भी अलग था। हजरत आमिना कहती हैं, और बच्चे जिस तरह से दुनिया में आते हैं, कोई पकड़ के खींच रहा हो, कोई दबा करके निकाल रहा हो, ना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद इस तरह से हुई थी। हजरत आमिना कहती है, मुझे तो एहसास ही नहीं हुआ, लेकिन जब मेरी नजरें उठी मेरे बच्चे को देखने के लिए, तो सबसे पहली नजर में मैंने अपने मौलूद को देखा तो वो सजदे के आलम में थे, सजदे के आलम में थे। रब्बे हबली कहते हुए पैदा हुए, हक ने फरमाया कि बख्शा सलातु वस्सलाम। हम तो शेर में पढ़ते हैं ना सलाम में, वो पैदा होते ही अपनी उम्मत को याद करते हुए आए थे। इससे पता चलता है नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को 40 साल के बाद नहीं बनाया गया, नहीं तो बीबी आमिना की गोद में आकर उम्मत को याद नहीं करते। लोग कहते हैं 40 साल के बाद नबी बनाए गए। अरे दीवानो, 40 साल के बाद अगर नबी बनाए जाते तो बीबी आमिना तो कह रही हैं, पहली नजर मैंने जब देखा सजदे में देखा और जुबान से ये निकल रहा था रब्बी हबली उम्मती, वो अपनी उम्मत को पैदाइश के दिन याद कर रहे हैं। तो वो तो नबी उस वक्त भी थे जब अभी आदम अलैहिस्सलाम को गूंधा भी नहीं गया था। अजीजान गिरामी, ये मुख्तसर सी बातें थी मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में, इसीलिए हर साल हम झूम करके मिलाद मनाते हैं। इसका फायदा क्या होता है? देखो, आप मेरे नबी से करीब हुए कि नहीं हुए, रसूल पाक को देखने का जज्बा बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अब हजरत बीबी आमिना के बाद एक और खातून है, अल्लाह अकबर, उनकी जुबान की बात सुन लीजिए। मक्का मुकर्रमा से हुजूर हिजरत करके मदीना जा रहे थे, एक खातून के घर एक रात का क़याम हो गया था, उम्मे माबद के घर। वो खातून के घर हुजूर ने हजरत अबू बकर के साथ क़याम किया था। हजरत अबू बकर और हुजूर, इत्तेफाक ऐसा कि उस खातून के घर में उस दिन कुछ भी नहीं था। वो बड़ी मेहमान नवाज औरत, हर मुसाफिर को खिलाती थी, लेकिन उस दिन कुछ भी नहीं था। सारी बकरियां जा चुकी हैं, उसका शौहर चराने के लिए गया है। रात के वक्त एक बूढ़ी बकरी बाहर बंधी हुई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा, हमें रुकने का यहां पर इंतजाम कर दोगी? कहा, रुक तो सकते हो, खाने के लिए कुछ नहीं। कहा, अगर इजाजत दो तो इस बकरी का दूध निचोड़ लूं। कहा, अगर ये दूध देने वाली होती तो यहां क्या करती? ये भी दूसरी बकरियों के साथ चरने के लिए चली जाती। ये बूढ़ी है, मौत का इंतजार कर रही है। हुजूर ने फरमाया, तुम कहो तो मैं निचोड़ लूं। उसने कहा, अगर तुम्हें मिल जाए तो ले लो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बायां हाथ उस बकरी की पुश्त पर रखा, दायां हाथ उसके थन पर लगाया। हजरत अबू बकर फरमाते हैं, इतना दूध भर गया कि उम्मे माबद के घर में जितने बर्तन थे सब भर गए, सारे बर्तन दूध से भर गए। हत्ता कि उम्मे माबद के पूरे खानदान वालों को भी दूध बांटा जा सकता था उस एक बूढ़ी बकरी से। वो एक बकरी जिस पर हुजूर ने हाथ रखा था, वो एक रात के लिए सेहतयाब नहीं हुई थी। हदीस पाक में है, हुजूर के पूरे जमाने में वो दूध देती रही, अबू बकर सिद्दीक के पूरे जमाने में दूध देती रही, हजरत उमर फारूक के जमाने में दूध देती रही। उससे पहले उससे बाद वाली बच्चियां जो उसके पास थी वो सब खत्म हो गई, लेकिन दस्ते मुस्तफा की बरकत वाली ये बकरी काफी दिनों तक हयात रही, दूध देती रही। अब मैं ये वाक़या तफसील से नहीं अर्ज कर रहा हूं। हुजूर आए, दूध पिया, दूसरे दिन सुबह सुबह मदीने तशरीफ ले गए।
उम्मे माबद का शोहर आया, देखा घर में अजीब सी खुशबू फैली हुई है। वो आते हैं तो खुशबू लेकर आते हैं, वो आते हैं तो रोशनी लेकर आते हैं। अचानक तब्दीली, हर बर्तन में दूध, हर जगह यहां पर खुशबू, भीनी भीनी सी महक, ये कैसा उजाला? उम्मे माबद से पूछा, उम्मे माबद ये क्या है? घर मेरा पूरा तब्दील नजर आ रहा है। उम्मे माबद ने कहा, कल रात एक शख्स आया था, कल रात एक शख्स आया था, वह हमारा मेहमान बना था। उम्मे माबद के शोहर ने पूछा, क्या नाम था उसका? उम्मे माबद ने अपने दिमाग से एक नाम जड़ लिया, कहा उसका नाम मुबारक था। नाम पूछा नहीं था, इसलिए अपनी जुबान से कह दिया, मुबारक नाम का एक शख्स आया था। पूछा वो कैसा था? अब सुनो, उम्मे माबद की जो हदीस है, तवील हदीस है, कहती है, इदा तकल्लम फअलैहिल बहा व इदा समत फअलैहिल वक़ार, इदा मशा यफ़ू मिनहु अत्तय्यब वल मिस्क वल अंबर। ये कहती है, अगर तुम उसे देखे होते, जब वो खामोश बैठता है वकार का बादशाह लगता है, जब बोलता है मुश्क अंबर की खुशबू आया करती है, जब वो मुस्कुराता है तो पूरा घर उसके दांतों से रोशन होता है, जब वो देखता है तो उसकी आंखों में झील की तरह से गहराई है, और जब वो पानी पीता है तो उसके गर्दन की नाली से पानी नजर आता है, उसके नाखूनों में भी अल्लाह ने चमड़े से ज्यादा नरमी रखी है, उसके हाथों को और उसके कंधों को, कलाइयों को मौला ने चांद जैसी रोशनी अता की है, और वो इतना मुबारक है कि चले तो ऐसा वकार कि सारे लोग ठहर जाएं, बैठे तो सारे लोग दीदार के लिए खड़े हो जाएं। और फिर वो कहती है, ये ना समझना मैं करीब से देखी तो बता रही हूं, उस एक शख्स को मैंने जिंदगी में देखा, दूर से देखो तो भी हसीन है, करीब से देखो तो भी हसीन है। उम्मे माबद, ये तू ऐसी बात क्यों कर रही है? कहा, इसलिए कह रही हूं कि चांद को हम बहुत दूर से देखते हैं, चांद को हम बहुत दूर से देखते हैं, हसीन लगता है, सूरज को बहुत दूर से देखते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन करीब जाओगे तो आंखें फट जाएंगी, वो ताब नहीं ला सकेंगी। मगर ये जो मेरे घर मुबारक आया था, ये ऐसा नहीं है, दूर से देखो तो भी आंखें बढ़ती हैं, करीब से देखो तो आंखों की रोशनी और बढ़ जाती है। हुजूर की सिफात और तारीफ में उम्मे माबद ने इतनी लंबी हदीस बयान की, हत्ता कि हुजूर के नाखून तक गिनाए, हुजूर की उंगलियां तक बताई कि वो अपने हाथों की उंगलियां ऐसी रखा है जिसको मैं अगर फाजिल बरेलवी की जात की तरफ मंसूब करते हुए आपके सलाम की तरफ आ जाऊं तो मेरे आका आला हजरत ने भी वही तारीफ की है जो उम्मे माबद ने देख करके तारीफ किया था। आला हजरत ने कहा है, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम, दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, जिसके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम, खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस कफे पाक की हुर्मत पे लाखों सलाम, कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम, जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज रियासत पे लाखों सलाम, ऊंची बीनी की रिफअत पे बेहद दुरूद, ऊंची बीनी की रिफअत पे बेहद दुरूद, नीची निगाहों की शर्मो हया पर लाखों सलाम। मेरे आला हजरत ने हुजूर के एक एक अदा को अपने सलाम जो बयान किया है, वही उम्मे माबद की हदीस थी। मेरे अजीजों, आओ मैं आखिर में इतना ही अर्ज करना चाहूंगा, आप ये क्यों नहीं पूछते कि मेरे आका कैसे दिखते थे, कैसे नजर आते थे? ये हदीसों में पढ़ते हैं। अगर एक बार मेरे आका का हुलिया पढ़ लोगे या कहीं से सुन लोगे, आंख बंद करना, कसम रब्बे जुल जलाल की, अगर वो जलवा नजर ना आए तो फिर मुझे कहना, अगर वो जलवा नजर ना आए, नजरों में बसाओ उस चीज को, तो फिर देखो कि क्यों नहीं नजर आते। तुम खाली दुरूद पढ़ के सोचते हो कि वो आ जाएंगे, तुम ये तस्वुर करके यानी सिर्फ तस्बीह घुमा करके सोचते हो कि वो आ जाएंगे। अपने जहन से सारी तस्वीरें हटाओ, उस एक सूरत पर नजर जमाओ, उस एक सूरत पर नजर जमाओ। हम अपनी जुबान से नहीं, सहाबा से पूछ करके कि वो रसूल दिखते कैसे थे। हजरत उवैस करनी ने हुजूर को देखा नहीं था, उवैस करनी ने हुजूर को देखा नहीं था, सिर्फ सहाबा से पूछा ही था वो कैसे दिखते हैं, और फिर रोजाना मेरे आका की जियारत करते थे।
रोजाना हुजूर की जियारत करते थे, आंख बंद करते थे। सिद्दीक अकबर ने कहा है हुजूर के लम्हाए मुबारक गुलाब की पंखड़ियों की तरह हैं। दोनों अबरू मेरे आका के बड़े घने थे और थोड़ा सा मिले हुए थे। पेशानी काफी ऊंची थी, आंखें बड़ी बड़ी थी और बहुत ही काली आंखें थी। रुखसार इतने भरे हुए थे। दोनों गाल हुजूर के कि कभी गुस्से में आ जाए तो अनार की सुर्खी और कभी मुस्कुराए तो गुलाबी रंगत। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते थे तो कभी 2 दांत नजर आए, कभी 4 दांत नजर आए और दांतों में इतनी तेज रोशनी कि अंधेरा कमरा भी जगमगा उठे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक इतनी साफ और शफाफ कि देखने वाले कहते ये पानी पीते वक्त भी उन्हें पानी नजर आ जाए। और बाल मुबारक, अल्लाह अकबर, जिसको कुरान कहता है वल्लैली इज़ा सजा, वो बाल हुजूर के जुल्फें यहां सर से निकलती हुई कभी कंधों पर बल खाती थी, कभी कानों को बल खाती थी। आला हजरत ने कहा है कभी ये जुल्फें चेहरे पर आती तो ऐसा लगता था कि ये दिन के उजाले पर रात छा गई है, ये दिन के उजाले पर रात छा गई है, इतनी तेज काली जुल्फें। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कद मुबारक बहुत लंबा भी नहीं, बहुत नाता भी नहीं, लेकिन इतना जरूर था कि सारे सहाबा में जब भी हुजूर खड़े होते सबसे ज्यादा बुलंद मेरे आका नजर आते थे। किसी को झांक कर देखने की जरूरत नहीं होती, हुजूर जहां होते थे बुलंद नजर आते थे। न बहुत ज्यादा लंबे, न बहुत ज्यादा पस्त कद। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का न पेट मुबारक बाहर निकला था, न ही कोई जिस्म का अजू बाहर निकला था, बिल्कुल शेड्यूल सा जिस्म था। यहां तक कि सीना मुबारक भरा हुआ, हथेलियां बिल्कुल कुशादा और चौड़ी, यहां तक कि जो मुसाफा करे उसे ऐसा लगता कि वो रेशम के नरम नरम गद्दे में या लिबास में अपना हाथ देकर के निकाला है। और जो एक बार देखे हुजूर को पलकें झपकाना भूल जाए। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिबास मुबारक का आम तौर पर अंदाज यह होता कि तहबंद शरीफ पहनते, चादर ऊपर डाल लेते, कभी जुब्बा पहना और गर्मियों के दिनों में सिर्फ चादर डालते। और फरमाते हैं सहाबा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुआ के लिए कभी इतना लंबा हाथ उठाते थे, ऊपर की तरफ हाथ उठाते थे, हुजूर के बगलों की सफेदी नजर आती थी, इतनी तेज उजालापन वहां से आता था कि अगर किसी की सुई गुम हो जाए तो उस रोशनी में वो अपनी सुई ढूंढ सकता था। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये बगलों की सफेदी तक नजर आती थी सहाबा को। और दाढ़ी मुबारक इतनी घनी थी, अल्लाह अकबर, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक बिल्कुल शेड्यूल घनी हुई। हुजूर के बाल मुबारक न बहुत ज्यादा नरम जिसको सिल्की कहते हैं, न बहुत ज्यादा घुंघरालू, बल्कि दरमियान के थे, कुछ हल्के से घुंघरू और बहुत ही नरम। इन बालों को देख करके अरब के तमाम लोग अश अश करते थे कि ये दूल्हा ने पाई है रंगत कहां से। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक की ये थी। और तलवे हुजूर के कदम मुबारक इतने भारी कि जिस पत्थर पर रखे हुजूर वहां पर निशान पड़ जाए। और न ही उंगलियां बहुत ज्यादा लंबी, न ही बहुत ज्यादा छोटी, बल्कि बहुत ही ज्यादा मुलायम और एक साइज की। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये तमाम बातें हो गई। उसके अलावा सबसे बड़ी बात तो ये थी कि सहाबा सबसे ज्यादा जिस चीज की तलब में रहते थे वो मेरे आका के पसीने की तलब होती थी। कि गर्मियों में उम्मे सुलैम कहती हैं कि मैं हुजूर के घर पर आने का इंतजार करती, दोपहर में मेरे आका आते, कभी मेरे घर सोते थे, हुजूर की पेशानी से कुछ बूंदें टपकती थी, मैं उसको शीशी में जमा कर लेती थी। हुजूर एक दिन बेदार हो गए, पूछा उम्मे सुलैम क्या कर रही हो? कहा या रसूल अल्लाह, इसको हम अतर के तौर पर जमा करते हैं और दुल्हनों को लगाते हैं और खुशबू के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पसीने मुबारका में इतनी तेज खुशबू थी कि इमाम ने फरमाया है जिन दुल्हनों को हुजूर का पसीना लगाया गया था उनकी 7 पुश्तों तक उनकी औलाद में वो खुशबू आया करती थी। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इमाम अहले सुन्नत ने जो फरमाया है, सर ताब कदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल, दहन फूल, जकन फूल, बदन फूल, और मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। उस मुस्तफा करीम का तस्वुर करो जो मैंने तुम्हें बताया। अब फिर आंखें बंद करके मेरे आका को तस्वुर में जमाओ, फिर देखना
तुम्हें मुस्कुराता हुआ चेहरा वो नजर जरूर आएगा। तुमको मैंने गुलाबी रंगत भी बताई, उनके रुखसारों की सुर्खी भी बताई, उनकी पेशानी भी बताया, उनके लबों की अंदाज भी बताया, उनकी दाढ़ी मुबारक भी बताया, उनका जुब्बा मुबारक भी बताया, उनका अमामा मुबारक भी बताया, उनके कान भी बताए, उनकी आंखें भी बताई, उनके हाथ भी बताए। बस मेरे अजीज हो, तसव्वुर ये जमाओ। जाहिर सी बात है, हम किसी से मोहब्बत करते हैं, आंख बंद करते हैं, उसके आने का इंतजार करते हैं। हमारी मोहब्बत हमारे आंखों के सामने आ जाती है। आज हम इस महफिल में जिससे मोहब्बत करते हैं, आंख बंद करो, तसव्वुर जमाओ, देखो कि वो आते हैं कि नहीं आते हैं। कहो इतना, मेरे आका आओ की मुद्दत हुई है, तेरी राह में अखियां बिछाते बिछाते। मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है, तेरी राह में अखियां बिछाते बिछाते। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह। यकीनन मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जियारत मैं दुआ करता हूं मौला इस पूरे मजमे को, बल्कि जो समाअत कर रहे हैं इसी माह रबीउन नूर में, इसी मीलाद के मौसम में, नहीं मौला इसी शब में मेरे आका की जियारत नसीब फरमा।